स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Okay, question number one is with reference to Reserve Bank of India, consider the following statement. Okay, two statements are given. Okay, statement one is RBI governor is appointed by the President of India on the recommendation of PMO. ठीक है, तो ये statement क्या है? Is it correct or wrong? True is Okay, let's check statement two also. ठीक है, then we'll discuss which one of the following is correct or not. Right? The Reserve Bank's affairs are governed by a central board of directors. Right? So you have to identify which of the given statement is are not correct. Okay. So what is the correct answer for the question number one? A. Okay. So statement one is incorrect. Okay. So what should be the correct statement? Means who is means who is authorized to appoint the Reserve Bank of Governor? कमेटी एक CP शायद Okay. Basically, it is appointed by the Prime Minister's office, right? And on the recommendation of finance ministers. Okay. So there is no role of a President of India here. Okay. So RBI governor is basically appointed by the Prime Minister's office. Okay. Statement two is absolutely correct, right? There is a one central board of directors, right, which looks after the governance of Reserve Bank of India. Okay. So for this question, question number one, option A is the right answer. Okay. So statement one is incorrect. Okay. Next question. Yes, there is one small passage is given, right? The passage says it is the amount of minimum deposit that the commercial banks are required to maintain with RBI. Okay. It is the percentage of cash required to be kept in a reserve against the bank's total deposit, right? It cannot be used for lending purpose. Okay. So you have to identify which one of the following is the best described in the passage given above. So what is the correct answer for question number two? B. B. Okay. Here. Okay. Okay. This was a very straightforward and simple question. Okay. So you have a cash reserve ratio, right? So a particular bank has to maintain certain amount, means a percentage of amount out of total deposit, right? With the Reserve Bank of India. Okay. So the passage signifies the cash reserve ratio. Okay. Okay. Let's move to question number three. Wait a minute. A is correct. Okay. With reference to monetary policy, consider the following statement, right? In expansionary policy, the monetary authority often lowers the interest rate to promote spending money and borrowing, right? This statement is absolutely correct, right? This is the main goal behind expansionary monetary policy, right? And the second statement says the contractionary monetary policy aims to inject the money in the market or economy. So the statement two is incorrect. Okay. This is the role of expansionary monetary policy as well, right? Expansionary monetary policy aims to inject the money in the economy or the market. Okay. So for question number three, correct answer will be option A. Okay. Okay. Next question. Which of the following is a function of money? इसका आंसर क्या लगाया आप लोगों ने? Question number four. D. 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 D for Yes. daily, right? Yes. Okay. So all three are the functions of money, right? Medium of exchange, right? We are using it to buy something, right? And to exchange. Okay. Store of value, yes. It is also used as a store of value, right? And measure of value also. Okay. So all ABC, all three are correct. That's for this reason, question number four के लिए option D is the right answer. Okay. Next question. Consider the following instrument of monetary policy. Okay. Four statements are given, four instruments are mentioned, right? So you have to identify how many of the above are qualitative monetary policy instruments. So what is the correct answer for this question? D, sir. So only two. D लगा Only two. Okay. C कितने लोगों ने लगाया है? Me sir. Okay. For question number five, C is the right answer. Okay. Let me explain. ठीक है. ओपन मार्केट ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो इट इज ए क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, राइट, नॉट क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. बाकी स्टेटमेंट वन, टू एंड फोर की अगर बात करेंगे तो वन इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट. ठीक है. मीन्स जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर बैंक होती है, ठीक है,
रिजर्व बैंक उस बैंक को अपना जो क्रेडिट गिविंग मतलब जो उसकी पावर है, ठीक है, उसको रैशनलाइज करती है, ठीक है, मीन्स उसको लिमिट कर सकती है, फिर बढ़ा भी सकती है, ठीक है। मतलब जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक को बोल देगी कि पर्टिकुलर सेक्टर है, ठीक है, आपको उस सेक्टर में लोन प्रोवाइड नहीं करना है, क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है, या फिर बोल देगी कि आपको आपके टोटल क्रेडिट के सिर्फ 10% या 5% ही आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो दिस वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब रेशनलाइज करती है, ठीक है, क्रेडिट को, रेशनिंग, ठीक है, कम भी करेगी ज्यादा भी करेगी, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, डायरेक्टली मतलब एक काइंड ऑफ परसुएट करती है, ठीक है, बैंक को, या फिर एक काइंड ऑफ डिसीजन मतलब प्रोवाइड करती है, एक डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है बैंक को कि आप सर्टेन लेवल तक ही क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं पर्टिकुलर सेक्टर को, ठीक है। उसके बाद में चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मीनिंग ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग लोन लेते हैं तो हम लोग कुछ कोलेटरल लेके जाते हैं साथ में, ठीक है, लैंड लेके जाते हैं, कोई कैपिटल लेके जाते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मीनिंग मतलब ऐसा होता है कि ये शो करता है कि आपकी कोलेटरल की कितनी वैल्यू पे आपको कितना लोन मिलेगा बैंक से, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, कभी कभी आरबीआई को अगर लोन कम करना है मार्केट में, ठीक है, मतलब क्रेडिट कम करना है मार्केट में, करेंसी का फ्लो कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, बोलेगा कि सपोज 10,000 की हम कोई एक कैपिटल अगर हम रखने जा रहे थे वहां पे, कोई एक हमारे पास एक कोलेटरल था, ठीक है, वो रखने जा रहे थे बैंक में, ठीक है। तो बैंक बोलेगी 10,000 देंगे तो 8,000 मिलेगा, ठीक है। बट आरबीआई ने कुछ एक डायरेक्शन निकाल दिया, ठीक है, ताकि लोग ज्यादा लोन की फैसिलिटी को अवेल ना करें, ठीक है। तो आरबीआई क्या बोलेगा कि जितना आप 8,000 रुपए दे रहे थे ना 10,000 के पीछे, अब आपको 7,000 ही देना होगा, बैंक को बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मार्जिनल रिक्वायरमेंट को चेंज करना, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, जो कोलेटरल लेके जा रहा था उसको लगेगा कि अरे मतलब पैसे तो कम ही मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लोन नहीं लेगा, ठीक है, मीन्स मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, ठीक है। तो दिस इज द वे, ठीक है, इसलिए ये क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसके बाद में रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट, ठीक है, कस्टमर क्रेडिट मतलब ये रेशनिंग ऑफ क्रेडिट है, सिमिलर उसी टाइप से थोड़ा बहुत इसका भी मीनिंग आता है, ठीक है। तो जो कस्टमर की क्रेडिट होते हैं, ठीक है, उसको भी रेगुलेट करना, ठीक है, कि हाँ मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, ठीक है, आरबीआई बोलेगा कि इस कंपनी को, इस कस्टमर को क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है, या फिर कम करना है या फिर ज्यादा करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आरबीआई रेगुलेट करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 तीनों करेक्ट रहेंगे, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी रहेगा, ऑल थ्री इंस्ट्रूमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, सर वो ऑल थ्री मार्जिनल इंस्ट्रूमेंट्स। रिक्वायरमेंट, हेलो, यस, हाँ वो पूछिए। मार्जिनल रिक्वायरमेंट का था ना सर। तो सर ने बताया अगर आपको 1 करोड़ का घर लेना है तो हाँ 80 लाख बैंक देगा, 20 लाख आपको खुद भरना पड़ेगा। मतलब आप उस ठीक लोन है, के लिए हाँ कितने स्टेप्स दे रहे ये भी रहता है, ये भी है एक, ठीक है, कोलेटरल का भी आप जो बता रहे हैं, सर ने बताया, वो भी एक रीजन है, वो भी एक तरीका हो? है, ठीक है, इसको कंट्रोल करने का, ठीक है। Yes. ठीक है, ओके, नेक्स्ट सर क्वेश्चन इनमें नंबर से 6। कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं था? क्या क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to core banking solution consider the following statement, okay, two statements are given, okay. First one is it allows customer to avail banking facility from anywhere in the world, okay. Second statement is eKuber is the core banking solution of State Bank of India. So what is the correct answer for question number 6? Sorry, So one only. one only, okay. बाकी लोगों ने क्या लगाया इसका आंसर? सर ए। Okay, most of you people have given A as answer, right? Okay, so A रहेगा, B क्यों इनकरेक्ट है? सर आरबीआई के लिए है वो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Okay, okay. eKuber is the core banking solution under Reserve Bank of India, not State Bank of India, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन ए रहेगा अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने फर्स्ट इसलिए इनडायरेक्ट समझा क्योंकि वो सारे जहाँ पे ब्रांच होती है वहीं पे क्या आप अवेल कर सकते हो, तो मुझे लगा मतलब सब जगह थोड़ी होगी ब्रांच। नहीं नहीं, सब जगह रहती है, मतलब इसका बेनिफिट वही है, ठीक है। तभी तो जैसे कि दिल्ली में कोई रह रहा है, उसका अगर ब्रांच महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो वो दिल्ली में भी एसबीआई से जो भी बैंकिंग फैसिलिटी उसको अवेल कर सकता है, ठीक है। या फिर तो इन द एनी वर्ल्ड पार्ट लिखा ऑफ द ना सर? वर्ल्ड, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एसबीआई का ओके। कहीं भी ब्रांच है, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओके। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे एसबीआई की जगह पे आरबीआई आना चाहिए था, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स आर गिवन, राइट। stabilized exchange, first one is stabilized exchange rate, second one is
accelerating economic growth. Third one is maintain price stability. Fourth one is promote employment. So, how many of the above are the goal of monetary policy in India? So, what is the correct answer for question number 7? So only 3. B. Only 3. D. D D. for Delhi, right? All four. B. All 4. All four. Only 2. Only 2. Only 2. Okay. How many of you have given D as answer? मैंने details. Okay. So correct answer for this question is B, D, right? All 4. ठीक है. Exchange rate को stabilize भी करता है monetary policy. ठीक है. Exchange rate को Promote stabilize भी. employment is also included. Yes, yes. It also promote employment. ठीक है. अगर मार्केट में Economic अगर growth. देखो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर देखो इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट से आप कनेक्ट कर लो यहाँ पे. ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो डेफिनेटली इट विल ऑन द अदर हैंड इट विल प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, राइट. इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन होगी तो इट विल रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी. ठीक है. उसके बाद मेंशन, हाँ बोथ आर रिलेटेड. ठीक है. मतलब गोल सारे हैं चारों के चारों. ठीक है. बेसिकली एक मेजर गोल अगर मॉनेटरी पॉलिसी का देखा जाए तो फ्लो ऑफ करेंसी इन द इकोनॉमी को कंट्रोल करना. ठीक है. और उसके बाद में जब फ्लो ऑफ करेंसी अगर स्मूथ रहेगा तो ऑटोमेटिकली इट विल इंश्योर ऑल दिस, इट विल अटेन ऑल दिस 4 गोल्स. ओके. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 ऑल 4 स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट. ठीक है. तो इसलिए आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डी. ठीक है. ऑल 4 आर करेक्ट. सर लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को हमेशा ही एक्सेलरेट करेगा तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना. यही तो इलेक्शन के टाइम पे होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ को होने दो भले ही इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए. तो फिर ये तो लाइक बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ तो वल्नरेबल पीपल के लिए हानिकारक होगी ना. तो फिर नहीं, ऐसा नहीं, डायरेक्टली नहीं बोल सकते. इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ और बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इसमें Yes. डिफरेंस है. ठीक है. बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ अगर रहेगी तो ठीक रहेगा. ठीक है. बट यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं किया है, आप ऐसा कनेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. द क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी और उसके ऑब्जेक्टिव. ठीक है. अगर जैसे कि रिसेशन का टाइम है, ठीक है, रिसेशन में हमने देखा होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है. ठीक है. रेपो रेट को कम कर देगी. ठीक है. मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करेगी. ठीक है. रिसेशन में क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैगल हो जाती है. ठीक है. रुक जाती है. ठीक है. तो वहां पे फिर से इकोनॉमी को एक किक प्रोवाइड करने के लिए, फिर से रीस्टार्ट करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करता है. ठीक है. तो उसके बाद में आउटकम क्या निकल के आता है, एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज हो जाता है. ठीक है. रिसेशन के टाइम में क्या होता है, एक्सचेंज रेट डिस्टेबलाइज हो जाता है. ठीक है. उसके बाद में प्राइस स्टेबिलिटी नहीं होती है, इनस्टेबल होती है प्राइस. जैसे काफी कंट्रीज के देख रहे होंगे कि इन्फ्लेशन काफी हाई लेवल पे चला गया है. ठीक है. तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज होता है. ठीक है. और जब सारी चीजें होंगी तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली इट विल प्रमोट एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. तो सर लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लाइक मॉनेटरी पॉलिसी स्पेसिफिकली जैसे एम्प्लॉयमेंट जब अमेरिका में जब रिसेशन आया था एक टाइम पे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कहा, तभी तो वो काइनेशियन थ्योरी आई थी कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से कुछ नहीं नहीं, होगा. काइनेशन थ्योरी उसकी डिप्रेशन के, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम की है. ठीक है. यस सर, उसी टाइम पे तो आपको फिर हम्म. डिमांड क्रिएट करना होगा, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से कुछ नहीं होगा. हाँ ठीक है. डिमांड देखो ना, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होना इट मींस डिमांड क्रिएट कर रहे हैं हम लोग मार्केट में. ठीक है. अब डिमांड एक बार मार्केट में क्रिएट हो गई तो उसके बाद में डिमांड क्रिएट होने के बाद में हमें मल्टीपल कमोडिटीज लग रही है, मल्टीपल सर्विस लग रही है. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फैक्टर ऑफ इकोनॉमी रहता है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जो लेबर है उसको ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करेंगे. क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गई है. अब हमें नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे प्रोडक्शन में. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे. ठीक है. सर्विस हमें अब ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ठीक है. जैसे कि मेरा कॉल सेंटर है. ठीक है. 100 लोगों को मैंने एम्प्लॉय किया था. इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई, लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल आ गए, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पे शॉप करने लगे. ठीक है. अब मुझे उनको सर्विस देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जो बीपीओ है वहां पे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रखनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा. ठीक है. तो ऐसा ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है सारी चीजें. ठीक है. डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते मॉनेटरी पॉलिसी फर्स्ट लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ देन इट विल प्रमोट एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. मतलब एक सिंक में चलेगा सारी चीजें. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कि, मतलब आप इसको इंडिविजुअली मत कंसिडर करिए. ठीक है. फर्स्ट विल हैव इकोनॉमिक ग्रोथ, देन विल हैव अ डिमांड फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट, then automatically it will lead to the promotion of employment. ठीक है. ओके सर. So this is the goal of monetary policy. Okay.
Everyone is clear with this question? Question number 7. Yes, sir. Okay, let's move to question number 8. Consider the following statement about the rubber production. ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपके. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. Kerala. Okay, Kerala is the answer. Okay, so Kerala is the largest rubber producing state in India. ठीक है, the minimum support price is provided by the union government for natural rubber. Then third statement is the rubber board is a statutory organization under the administrative control of Ministry of Commerce and Industry. So what is the correct answer for this question? So only two. Only two. Okay, Yes, sir, please. okay, only two. Okay. मतलब क्वेश्चन नंबर 8 के टोटल आउट ऑफ 3 स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? Number one. 1 and 2 Only number one. incorrect है. नंबर 2 भी इनकरेक्ट है. ओके, एंड स्टेटमेंट नंबर 3. 3 is correct. Okay, so what will be the answer for this question? Question number 8. मैंने तो 1 ही लगाया. Okay, correct answer for question number 8 is A, option A. ठीक है, only one is correct, that is statement number 3. ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, इनकरेक्ट है. केरला इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. ठीक है, काफी टाइम से अभी भी है. ठीक है, उसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज प्रोवाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर नेचुरल रबर. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, नेचुरल रबर को एमएसपी नहीं प्रोवाइड करता है यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, रीजन ये है कि एमएसपी के अपने कुछ क्राइटेरिया है. ठीक है, मतलब अगर एमएसपी के एक मेजर क्राइटेरिया देखा जाए तो वाइड, मतलब ऑल ओवर इंडिया, मोस्टली ऑल ओवर इंडिया में प्रोड्यूसिंग होना चाहिए पर्टिकुलर कमोडिटी. ठीक है, उसके बाद में इसको लार्ज कमोडिटी का स्टेटस मिलना चाहिए. ठीक है, मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटी का स्टेटस मिलना चाहिए. ठीक है, जो रबर को नहीं मिला हुआ. ठीक है, इसलिए रबर को एमएसपी प्रोवाइड नहीं करते हैं. ठीक है, Decide थर्ड कौन स्टेटमेंट करता इज एमएसपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी. ठीक है, उसके बाद में रबर बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है, दिस इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, एक रबर एक्ट था. ठीक है, आई गेस 1947, राइट, 1947 का एक रबर एक्ट है. ठीक है, उसके थ्रू रबर बोर्ड को स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है. ठीक है, किसी को पता है रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है अभी, प्रेजेंट हेडक्वार्टर ऑफ रबर बोर्ड? कोट्टयम. यस, कोट्टायम, केरला. राइट, केरला जैसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. ठीक है, तो केरला में ही कोट्टायम में इसका हेडक्वार्टर है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज आल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. थोड़ा बहुत लिंकेज करंट अफेयर से, थोड़ा बहुत लिंकेज बेसिक्स से, स्टैटिक्स से हमारे. ठीक है, so with reference to PCA, that is prompt corrective action framework, consider the following statement. Statement 1 is PCA norm is imposed by RBI when a bank breach certain regulatory threshold. Okay, statement 1 is okay, and statement 2 is recently PCA framework for NBFC came into effect. So what is the correct answer for question number 9? अच्छा, आप लोगों ने पीसीए के बारे में पढ़ा है ना, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? हाँ सर, फर्स्ट वन इज Okay. करेक्ट. ओके, Okay, तो इनका पता नहीं. क्या होता है, जैसे कोई एक्सप्लेन करेगा पीसीए क्या होता है? सर वो जब जैसे कोई क्राइसिस में आ जाता है, कुछ ऐसा था, मतलब जैसे वो उसमें मदद करता है. जैसे ओके, क्या क्या क्राइटेरिया हैं जैसे पीसीए के, मतलब किस किस टाइप का तो कोई क्राइसिस बैंक अगर बैंक के पास? रिसेशन में आया हुआ है, सप्लाई, ओके, लिक्विडिटी कम. ओके, 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 ठीक है. देखिए, देयर आर 2-3 क्राइटेरिया. ठीक है, अगर वो ब्रीच होते हैं, जैसे कि बताया यहाँ पे कि बैंक ब्रीच कर रहा है सर्टेन रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड को. ठीक है, तो 2-3 थ्रेशोल्ड्स हैं. ठीक है, 2-3 क्राइटेरियाज हैं. ठीक है, अगर वो ब्रीच कर रहा है पर्टिकुलर बैंक, तो आरबीआई उनको पीसीए में लेके आता है. ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, मतलब तुरंत से इनको ठीक करने की जरूरत है. ठीक है, क्योंकि बैंकिंग स्ट्रक्चर हमें पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए. ठीक है, तो आरबीआई यहाँ पे तुरंत इनिशिएटिव लेता है. ठीक है, क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो एक एनपीए होता है. ठीक है, अगर बैंक का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो आरबीआई वहाँ पे उसके बैंक पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा देगा. ठीक है, उसके बाद में एनपीए हो गया. उसके बाद में रिटर्न ऑन एसेट. ठीक है, जैसे कि बैंक का जो एसेट है, ठीक है, उसके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है बैंक को बहुत ज्यादा कम हो गया. ठीक है, तो आरबीआई को लग रहा है कि बहुत ज्यादा कम हो रहा है, ये बिजनेस के पर्पज से काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर कॉम्पिटेटिव स्पिरिट कम हो रहा है इन बैंक का. ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, उस बैंक के ऊपर पीसीए लगाएगा. ठीक है, और भी कुछ क्राइटेरिया है. ठीक है, लिस्ट आप एक बार देख लेना, कभी कभी यूपीएससी पूछ सकता है, 4-5 ऑप्शंस दे देगा. ठीक है,
तो उसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद में स्टेटमेंट टू इज, इसलिए स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, राइट। स्टेटमेंट टू है हमारा, पीसीए फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी केम इनटू इफेक्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है? करेक्ट है सर। ओके, Correct अभी है क्या सर। हुआ था? ओके, पहले क्या था कि पीसीए जो फ्रेमवर्क था वो सिर्फ जो सेकंड शेड्यूल में जो आरबीआई एक्ट जो है 1934 का, उसके जो सेकंड शेड्यूल में बैंक है जिसको हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ उनके लिए ही पीसीए फ्रेमवर्क लगता था, ठीक है। उसके बाद में आरबीआई ने क्या कर दिया अभी अक्टूबर में रिसेंटली, ठीक है, एनबीएफसी को भी पीसीए फ्रेमवर्क में लेके आ गए, ठीक है। तो सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, उसके बाद में एनबीएफसी ऑल्सो, ठीक है। तो कुछ दोनों स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in India the central bank function as a lender of last resort usually refers to which of the following? वन ठीक एंड है, टू। रिपीट हो गया था। बी। टू okay, ओनली। only two, तो right? वन एंड टू। थ्री। Lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources, नहीं। prompt correct जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट जो है सेंट्रल बैंक जो हमारा आरबीआई उसका फंक्शन, वो सिर्फ बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। अगर बैंक को अगर कोई क्राइसिस आ रहा है, टेम्पररी क्राइसिस, जैसे मैंने बताया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पीसीए वाले में, कि बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अगर बैंक में क्राइसिस आ रहा है तो ओवरऑल इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, बिकॉज काफी ज्यादा बैंक्स में अकाउंट होल्डर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बैंक में अगर क्राइसिस आता है, जैसे पीछे हमने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कुछ बैंक है उनमें क्राइसिस आ गया था, ठीक है, तो तुरंत से आरबीआई ने एक्शन लिया था, ठीक है। तो जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। कोई ट्रेडर हो गया, कोई बिजनेस हाउस हो गया, ठीक है, उनको अगर इमीडिएट पैसे की जरूरत है या फिर वो इमीडिएट उनको कुछ ना कुछ इकोनॉमिक इश्यूज आ गए, ठीक है, तो वो आरबीआई के पास जाएंगे। तो ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट वाला, एक तो मैंने बताया था कि कल भी हमने पिछले वाले जो हमारा जो टेस्ट था उसमें बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डोंट प्रोवाइड एनी बैंकिंग फैसिलिटी टू एनी सिटीजन या फिर एनी बिजनेस हाउस, ठीक है। वो सिर्फ बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक को, बैंकर्स बैंक बोलते हैं, या फिर गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं उसे, ठीक है, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए स्टेटमेंट टू इज दी ओनली करेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। हेलो सर। ठीक है, नो सर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर Yes. लैंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट नहीं होएगा? नहीं नहीं, बजटरी डिफिसिट इज समथिंग डिफरेंट, वो मोनेटाइजेशन ऑफ बजटरी डिफिसिट हमने उस दिन देखा था एक क्वेश्चन में, ठीक है। मोनेटाइजेशन होता है, ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, ये लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फिनेंस बजटरी डिफिसिट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है, बट इट इज नॉट कम्स अंडर लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन है, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो स्टेटमेंट थ्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, एक फंक्शन है, बट लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट वाला फंक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतने बड़े क्राइसिस में आ जाए कि उसको मतलब ये आरबीआई को ये फंक्शन यूज करना पड़े, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड करने के लिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट थ्री एक फंक्शन है, ठीक है, बट लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट वाला एज अ फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ बैंक के लिए है, इतना आप याद रखना, ठीक है, कभी भी आए क्वेश्चन में, ठीक है। हेलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है सर, इसमें मुझे मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया सर, कि ये जो लेंडर ऑफ लास्ट रेजोर्ट सर, इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं सर फंक्शन में? लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट मीन ऐसा रहता है ना कि बैंक बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ गई है, ठीक है, सिंपल ऐसे याद रखो, ठीक है। बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक खत्म है, ठीक है। बैंक को अब एक ही ऑप्शन बचता है उसके बाद में सेंट्रल बैंक के पास जाना, ठीक है। बैंक देखो बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज करती रहती है, बहुत सारी एक्टिविटीज से अपनी इनकम जनरेट करती रहती है, ठीक है, बट कल को चल के ऐसा हो गया कि बैंक क्राइसिस में आ गई, बैंक खुद बैंकरप्ट हो गई, ठीक है, बैंक के पास पैसा खत्म हो गया, ठीक है। तो बैंक क्या करेगी, किसी के पास तो जाएगी पैसा लेने, मतलब किसी के पास तो लेंडिंग के लिए, मतलब किसी के पास तो फंड के लिए जाएगी, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन बैंक के पास क्या बचता है, सेंट्रल बैंक, इसलिए बोलते हैं सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, ठीक है। मीन्स लास्ट ऑप्शन में, ठीक है, अगर किसी बैंक को पैसा चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा और सेंट्रल बैंक उसको फंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
क्योंकि सेंट्रल बैंक का मेजर फंक्शन है स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, ठीक है। मतलब बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है, बैंक है हमारे इंडिया की, दे मतलब सेंट्रल बैंक चाहती है कि दे देयर शुड बी स्टेबिलिटी इन देयर फंक्शनिंग, इन देयर स्ट्रक्चरिंग, राइट। क्लियर है अभी गोड़ा? यस सर। ओके, ठीक सर आई हैव अ क्वेश्चन। है। सर यस, अभी आपने कहा था कि बैंक जो होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि केसेस कि बैंकरप्ट हो जाते हैं। सर बैंकरप्ट कैसे होते हैं? सर उसमें तो ऑलरेडी मनी सेव्ड रहते हैं ना। बैंक मतलब ऐसा हो सकता है ना कि बैंक बैंक का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया रिटर्न ऑन एसेट, जैसे मैंने बताया था, ठीक है, जो एसेट उन्होंने दिया है उसके ऊपर रिटर्न पूरा कम हो गया। ऐसा हो गया कि सारे बैंक मतलब किसी बैंक ने किसी एक बड़े बिजनेस हाउस को बहुत बड़ा लोन दिया था, बिजनेस हाउस कोलैप्स हो गया, ठीक है, तो बैंक का सारा पैसा चला गया, ठीक है, बैंक के पास बैंक पैसा रन भी हो खत्म हो गया। सकता है। बैंक रन भी हो गया, यस, बैंक रन केस होती है एक, ठीक है। तो बैंक रन केस में मतलब ऐसा हो गया कि बैंक रन का मीनिंग ये है कि सारे लोग एकदम से आ गए पैसे लेने बैंक के पास, ठीक है। जैसे कि मतलब किसी को पता चल गया कि लोगों को ये न्यूज फैल गई कि ये बैंक अब क्राइसिस में आने वाला है, बट यहाँ पे 1 लाख 2 लाख कस्टमर है, उनके सबके अपने अपने अकाउंट, सेविंग अकाउंट है वहाँ पे, ठीक है। किसी के फिक्स डिपॉजिट है, किसी की सेविंग अकाउंट है, किसी के और किसी टाइप के अकाउंट है, ठीक है। किसी का लोन मतलब गोल्ड रखा हुआ है उन्होंने किसी ने, ठीक है। उनको पता चल गया कि बैंक कुछ टाइम में बैंक क्राइसिस में आने वाली है, ठीक है। तो सब लोग क्या करेंगे, एकदम से बैंक के पास आएंगे, बोलेंगे कि हमें हमारा पैसा चाहिए, ठीक है। अब बैंक को देना है 10,000 करोड़ और बैंक के पास पड़े हैं 5,000 करोड़, ठीक है। अब बैंक क्या करेगी इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीआई के पास जाके दरवाजा, आरबीआई के दरवाजे जाके बैठेगी कि भाई ये इश्यू हो गया, ये हमारे से गलती हो गई, ये हमारे बैंक में दिक्कत आ गई, ठीक है। अब सारे लोग एक बार ही पैसे मांगने आ गए, ठीक है। तो वो अलग बात है कि सीआरआर या एसएलआर भी होता है, ठीक है, सेफ, ठीक है। बट इस केस में, ठीक है, सेंट्रल बैंक लास्ट रिजोर्ट होता है बैंक के पास हमेशा, ठीक है, बैंक रन केस में। यस सर। ओके, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10? लेट्स ठीक मूव टू है। क्वेश्चन नंबर 11. ओके, which among the following state is most likely to be taken at the time of economic recession? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या लगा है आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर reduction of 11, expenditure on public बी project. डी। डी और बी? डी बी फॉर Delhi, दिल्ली, फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे, Delhi. दिल्ली। मैंने बॉम्बे लगाया। ओके ओके ओके, यार एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी रहेगा, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। इकोनॉमिक रिसेशन पहले तो कोई डिफाइन करो कि बताओ इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है। हमने इससे पहले भी थोड़ा डिस्कस कर ग्रोथ लिया इसके बारे ग्रोथ में। स्टैग्नेंट हो जाएगी। ग्रोथ स्टैग्नेंट होती है, ग्रोथ स्टैग्नेंट कब होती है, क्या रीजंस होते हैं ग्रोथ स्टैग्नेंट जब होने लोग खर्चा नहीं करेंगे, पैसे अपने पास ही रखेंगे। के? यस, लोग खर्चा नहीं करेंगे, पैसे अपने पास रखेंगे, ठीक है। मार्केट में जीडीपी मतलब एक बेसिक अगर एक फॉर्मल डेफिनेशन इकोनॉमिक रिसेशन की अगर देखा जाए तो So money will decrease. कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर के लिए जीडीपी का जो ग्रोथ है वो मतलब जीडीपी निगेटिव में चला जाना, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर के लिए, ठीक है। इट मीन ग्रोथ कम हो गई, ठीक है, लिक्विडिटी कम हो गई। मेजर रीजन होता है लिक्विडिटी इन मार्केट गॉट रिड्यूस, ठीक है। लोगों के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, पैसा है तब भी लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पूरी कम हो गई, ठीक है। तो इस समय क्या करता है, अगर हम ऑप्शन वाइज देखा जाए एक एक, ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कट इन टैक्स रेट, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अकम्पनाइड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट मीन रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट बढ़ गया, ठीक है, रेपो रेट बढ़ने के बाद में मार्केट में पैसा फिर से कम जाएगा, ठीक है, तो लिक्विडिटी और कम होगी, तो हम स्टेटमेंट 1 को हटा देंगे, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। उसके बाद में स्टेटमेंट सी देखते हैं, इंक्रीज इन टैक्स रेट accompanied by रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अपोजिट है बस, स्टेटमेंट 1 और ए और सी जो है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बट दोनों का भी काम है मार्केट में लिक्विडिटी घटाना, ठीक है। टैक्स रेट बढ़ेगा, चीजें मेरे को 10 रुपए में मिल रही थी, अब मैं 12 रुपए में मिलेंगी, तो मैं तब भी नहीं खरीदूंगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी मार्केट में, ठीक है। उसके अंदर रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, ठीक है। पब्लिक प्रोजेक्ट मीन कुछ भी कंसिडर कर लो, ठीक है, मतलब जो बोलते हैं ना कि मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट, ठीक है। तो डिफिसिट क्यों आया, पब्लिक प्रोजेक्ट पर पैसा खर्चा किया है, ठीक है। तो मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट में क्या होता है, आरबीआई से हम पैसा लेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, ठीक है, मीन मार्केट में पैसा आरबीआई सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कम डाल रही है, ठीक है, मार्केट में कम जाएगा। जैसे कि कोई भी एक सब्सिडी देख लो, ठीक है, मतलब बोला कि 10 रुपए सब्सिडी दे रहा है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं अब 8 रुपए ही देंगे हम लोग, ठीक है, मतलब हमने क्या कर दिया, पब्लिक प्रोजेक्ट पे सब्सिडी में रेट कम कर दिया, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट 10 रुपए की वजह से 10 रुपए सब्सिडी देने की वजह से सस्ता था, अब 8 रुपए देने की वजह से महंगा हो गया, ठीक है। तो भी फिर क्या होगा, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए
ए, सी और डी इनकरेक्ट है, ठीक है। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, यस इंक्रीज कर दिया, ठीक है, मार्केट में और ज्यादा लिक्विडिटी डाल दी, ठीक है, उससे क्या होगा, डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी फिर से जो स्टैग्नेंट थी, जो रिसेशन में इकोनॉमी थी, वो फिर से किक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई कुछ डाउट है किसी को? नो सर, क्लियर। सब कुछ क्लियर है यस ना? सर। ओके, यस। चलो ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड इज सॉल्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर क्या लगा आप लोगों ने? मनी। मनी। ओके, मनी, मन। ओके ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को डाला था क्योंकि मुझे ये जानना था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, ठीक है, इस स्टेटमेंट का आप लोगों को प्रॉपर एक क्लियरिटी है कि नहीं, ठीक है। नहीं होगी तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सब लोगों को क्लियर है ये? नो सर। हाँ सर। अच्छा ये बताइए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या होता है? मतलब मेजर इशू कहाँ पे था, तभी जाके मनी आया? बार्टर सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, ओके, बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था मतलब दो एग्जैक्टली? लोग बार्टर एक्सचेंज में क्या चलता था? इन कमोडिटी। एक्सचेंज ऑफ गिवन कमोडिटी कंपनी को कम्युनिटी एक्सचेंज करते थे सर। सर वेट इसमें क्या वेट है वेट, कि मेरे पास फॉर एग्जांपल गेहूं है एंड मुझे फॉर एग्जांपल चेयर चाहिए, हम्म तो मैं चेयर जो बना रहा है उसके पास जाऊंगा, सॉरी हम्म जाऊंगी, हम्म। एंड वो एक बार कैमरा उस ऑन कर लीजिए वैसे। सर कैमरा ऑन है। अच्छा, ऑन है कैमरा, ओके ठीक है, Yes, sir. हाँ बताइए। तो मतलब मुझे वीट के मुझे चेयर चाहिए, तो मुझे मेरे पास वीट है, तो उस चेयर वाले को भी वीट चाहिए मतलब उसको नीड होनी चाहिए, तभी राइट, वो मुझे देगा। इसीलिए फिर वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की दूध के लिए ठीक है। वीट चाहिए या वीट के लिए मतलब चेयर। दोनों को, मतलब ये कोइंसिडेंस बोलते हैं ना हम लोग, कोइंसिडेंस है मतलब कि मतलब दोनों को भी एक ही टाइम पे एक ही चीज चाहिए, मतलब एक एक चीज चाहिए। जैसे कि मेरे पास गेहूं है, सामने वाले के पास टमाटर है, ठीक है, टमाटर वाले को गेहूं चाहिए, गेहूं वाले को टमाटर चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कि डबल कोइंसिडेंस हो गया, ठीक है, जरूरत है दोनों को, ठीक है। ये जब दोनों मीट की होगा strategy। तभी तभी ट्रांजेक्शन होगा, राइट। अगर ये दोनों मीट नहीं होगा, जैसे कि टमाटर वाला अपना बेटा हुआ है, गेहूं वाला अपना बेटा है, ठीक है, गेहूं वाले को कुछ और चाहिए, टमाटर वाले को कुछ और चाहिए, है ही नहीं मार्केट में, क्या है, घर निकल जाएंगे अपने अपने वापस, ठीक है, बेचेंगे ही नहीं। तो ट्रांजेक्शन जो है इकोनॉमी में नहीं होगा, ठीक है। इसी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का जो प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए मनी का कंसेप्ट लेके आए थे इकोनॉमी में, ठीक है, कि भाई पैसा है, कहीं भी दो, कुछ भी चीज खरीद सकते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है तुम कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को? किसी को कुछ इनपुट देना है यहाँ पे? नो सर। क्लियर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, पता नहीं पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, बट यार सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी रहेंगे कि आउट ऑफ बॉक्स लगेगा कभी कभी, बट थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल एकदम क्वेश्चन है, लैंग्वेज सिंपल है, देखिए थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो लग जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या लगा आप लोगों ने? ओनली वन। ओनली वन? ओनली टू। ओनली टू एक्चुअली। ओनली टू। ओके, ओनली कोई टू एक्सप्लेन एक्चुअली, करेगा? थ्री का थोड़ा सा कंफ्यूजन विथ ह्यूमन इनपुट। थ्री का देखिए, मैंने मतलब जो इलिमिनेशन वाली टेक्निक हमने देखी थी, जब हमने स्टार्टिंग में हमारे जो अभिव्यक्ति सेशन हुए थे, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ओनली तो जब आते हैं वो ऑनली वाले या फिर इस टाइप से, है ना, तो वो मी। जनरली एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो हम लोग उनको हटा देते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ केस में काम करते हैं, कुछ कुछ केस में काम नहीं करते, ठीक है, डेफिनेटली। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विथ रेफरेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस refers to the simulation or approximation of human intelligence in machine. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो Yeah. हमारा एक स्टेटमेंट अभी तक सही हो गया, ठीक है। उसके बाद में स्टेटमेंट 2, एआई इज डिजाइन टू ओनली कैरी आउट टास्क दैट आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड ह्यूमन लाइक, ठीक है, एंड नॉट दोज दैट आर सिंपल एंड सिंगल टास्क ओरिएंटेड, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक ओनली वाला आ गया, ठीक है, तो ये ओनली की वजह से ओनली की वजह से तो ये इनकरेक्ट हो जाता है स्टेटमेंट, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ कि ओनली हर केस में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फिक्स होती हैं, वो हमको जनरली पता होती हैं, उसी वहीं पे ओनली यूज होता है और वो स्टेटमेंट कभी कभी करेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। बट इस केस में ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है।
क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर देखा जाए तो इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद में एक सेकंड वन इज सिंपल या फिर नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो दोनों भी टाइप के ये टास्क जो होता है परफॉर्म करता है, ठीक है। ह्यूमन लाइक टास्क नहीं, बाकी जो नॉर्मल टास्क हैं, ठीक है, वो भी टास्क ये परफॉर्म करता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। थर्ड वन इज एंड करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट AI ओनली वर्क विथ ह्यूमन इनपुट। अब देखो जैसे मैंने बताया था, ये वाला हमारा नॉलेज है, ठीक है, इसके बारे में हमें क्लियरिटी है, ठीक है, कि ओनली ह्यूमंस आर प्रोवाइडिंग इनपुट एंड दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वर्किंग स्मूथली, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली लगा हुआ है, बट स्टिल ये स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है जब भी, ठीक है। मतलब हमने ये बता दिया कि सिर्फ ओनली रहेगा तो आउटराइटली, मतलब जल्दबाजी में ओनली दिख गया स्टेटमेंट में, उसको इनकरेक्ट करके निकल गया आगे, तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा बहुत केयरफुली भी पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए डाला गया है ताकि ये ओनली वाला जो रिलीवेंस है आपको यहाँ पे क्लियर हो। एक स्टेटमेंट में ओनली की वजह से इनकरेक्ट है, एक स्टेटमेंट में ओनली होने के बावजूद भी वो स्टेटमेंट करेक्ट है, Correct. ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या आता है, अच्छे से पढ़ने का, ठीक है, क्वेश्चन को पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना है, ओनली दिखता ही भागना नहीं है आगे, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर Only 13 के two. लिए? बी ओनली टू, राइट। स्टेटमेंट 1 Yes. एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। RBI. विच ऑफ द फॉलोइंग Yes, sir. एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग ₹1 करेंसी नोट इन इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सब लोगों ने पढ़ा होगा, Yes, sir. ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अच्छा ये बताइए कि ₹1 की जो करेंसी नोट होती है उसको साइन कौन करता है? सर Finance फाइनेंस sec- सेक्रेटरी सर। फाइनेंस सेक्रेटरी? यस श्योर हो सर। आप उसको लेके? यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है, चलो सही पढ़ाई हो रखी है मतलब सब लोगों की। अब अगली बार थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन डालने पड़ेंगे, अब मुझे ऐसा लग रहा है। सर इसी में 3 गलत हो गए अब तक। जो 3 गलत हो गए नहीं ठीक है, इतने तो होंगे गलत, ठीक है। बाकी अगली बार थोड़ा हल्का डिफिकल्ट डालना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गए। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एलिजिबल क्या बोल रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओवर मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। Sir. Statement 2 is open market operation influences the volume of loan and advances made by commercial bank in India, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लगा आप लोगों ने? C. Both. both. ओके, Both. ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है वैसे? The buying and selling of G-Sec in stock market. बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, गवर्नमेंट से, ठीक है, ठीक है। तो दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सी इज द राइट आंसर, ठीक है। Yes, ठीक है, sir. सबको सब लोग क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। आंसर सब लोगों ने भेज दिए मुझे, right? यस सर। ठीक है, चलो ओके ठीक है। बाकी टेस्ट ठीक रहा आप लोगों का आज? अच्छा था। था सर लेवल लाइक लग रहा थोड़ा था सा कि टूल्स कम था लेकिन अच्छा था। अच्छा अच्छा था, ठीक है, ओके ओके ओके, नाइस, ठीक है। बाकी कोई डाउट किसी तरह का, कोई और इश्यू? टोटल नो सर। ओके, किसी को कुछ डिस्कस करना है? तो मैंने आपको अपनी क्वेरी भेजी है व्हाट्सएप पे, एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिएगा उसे। ठीक है, डेफिनेटली आई विल गो थ्रू इट, ओके, नो इश्यू, ठीक है। बाकी किसी को कुछ और डिस्कस करना है तो बता दो। सर 40% SLR मेंटेन करना पड़ता है, ऐसा कुछ गाइडलाइंस है, तो उसमें वो गोल्ड भी रख सकते हैं करेक्ट SLR में। हाँ डेफिनेटली, हाँ, गोल्ड भी है तो उसमें। वो जो SLR में गोल्ड लगते हैं वो गोल्ड लोन वाला भी रह सकता है क्या? गोल्ड लोन वाला देखिए, जितना भी पैसा बैंक के पास आ रहा है ना, एक एसेट आ रहा है ना बैंक के पास, ठीक है, उसके परसेंटेज होता है, ठीक है। गोल्ड की वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक है, उसको SLR में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। पहले तो जो गोल्ड लोन जा रहा है बैंक के पास रख सकता है, दैट इज ऑल्सो एसेट फॉर बैंक, ठीक है, उसको यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है, एज
एक काइंड ऑफ अच्छा कोलेटरल है, ठीक है, उसको यूज कर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर आरबीआई ये भी तो करता है कि गोल्ड को करंट मार्केट प्राइस पे वैल्यूएट नहीं करता, हाँ, वो डेफिनेटली, हिस्टोरिकली यस यस किसी प्राइस पे करता है, ताकि लोग सॉरी बैंक्स इकट्ठा ना करें गोल्ड अपने पास। यस यस, दैट इज आल्सो ट्रू, ठीक है। और बाकी सर जो रेपो क्लासेस रेट वगैरह, यस हेलो यस, रेपो रेट, सर, वो हाँ बताइए रेपो बताइए। रेट सर बता रहे थे कि 7 डे 14 या 7 के मल्टीपल में रहता है, तो वो रेट बेसिस ऑफ पर एनम पर डे कैसे रहता है? मतलब अगर 100 रुपीज बैंक ले रही है आरबीआई से, तो अगर आप हम्म। 4% बोल रहे हो, तो ईयरली 4% रेट है या पर डे का या पर वीक का? यार देखो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, ठीक है, उसका निकाला जाता है, ठीक है, एवरेज होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, ठीक है, उसके हिसाब से रेपो रेट निकाला जाता है, और करंट मार्केट सिचुएशन को भी देख के निकाला जाता है। रेपो रेट बोल रहे हैं आप, सीआरआर बोल रहे हैं? रेपो रेट सर, मतलब जो रेपो कुछ रेट, ठीक है। कितना परसेंट रहेगा, एक्चुअली आई डोंट नो, तो ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, मतलब पर एनम पर डे पर मंथ कैसा रेट? यार एक्चुअली आपका पूरा डाउट मुझे क्लियर नहीं हुआ, आप मतलब रेपो रेट एक बार बताइए, आप क्या समझते हैं रेपो रेट से? रेपो रेट मतलब सर, बैंक अगर आरबीआई से बैंक लोन लेती है, कुछ ठीक है पैसे ठीक है लेती है, ठीक है, क्लियर है, तो ठीक है। उनको देखिए, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से होता है ये रेट, ठीक है, जितना भी बैंक के पास जो हाँ, टोटल टाइम एंड डिपॉजिट जो होता है, रेशो होता है बैंक का होता है, ठीक है, टाइम एंड डिपॉजिट जो ओके होता है, ठीक है, उसके उसके बेसिस पे रेपो रेट निकाला जाता है, ठीक है, मतलब उसके बेसिस पे बैंक से मतलब पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है बैंक को, ठीक है, एज एज पर रेपो रेट, ठीक है। ओके। एक एनडीटीएल होता है ना, नेट टाइम एंड डिपॉजिट, ये होता है ना शायद, हाँ सर, आप लोगों ने NDTL। पढ़ा होगा, है ना? तो वो बैंक का टोटल मनी शो करता है, ठीक है, ठीक है। किसी का कोई और डाउट है, कोई इश्यू? ठीक है, चलो मीटिंग क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन आपका रहेगा, ठीक है, आराम इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है, तो उसका डेट और हाँ सर। टाइम जब भी फिक्स होता है, देन आई लेट यू नो, ठीक है। इट विल बी ऑन मोस्टली ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में हम बहुत सारे डूज एंड डोंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइमलाइन क्या होती है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो डिस्कस करेंगे, मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और भी बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या मतलब इंटरलिंकेजेस हैं, जैसे कि एसए हो गया, हमारा एक पेपर हो गया, ठीक है, और जितना भी होता है मतलब ऑप्शनल के बारे में, ठीक है, काइंड ये वाला थोड़ा मतलब सेशन ऐसा रहेगा कि काइंड ऑफ एक डिस्कशन रहेगा हम लोगों के बीच में, ठीक है, कि मे बी आप लोगों का एक पार्ट रहूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब मेरे तरफ से ज्यादा चीजें बताई जाएंगी, ठीक है, हम लोग सब लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें आप लोगों को, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट आप लोगों को लगती है, ठीक है, क्या क्या इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है, आप जो इश्यूज फेस कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन किसी और के पास है क्या, आपके पीयर्स में, या फिर मेरे तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सारी चीजें रहेंगी, ठीक है, इसमें तो ठीक है। जब भी डेट और टाइम फाइनल होता है, देन आई लेट यू नो, ठीक है, ओके, ओके सर। चलो मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके, बाय बाय, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू। ओके, बाय थैंक बाय, यू टेक सर। केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।